according to organizational structure, types of audit. In this video we will complete types of audit part 2 from practical point of view. So let's start types of audit or classes of audit part 2 from practical point of view. Types of audit practical view. Basically there are 8-9 types of audit from practical point of view. First is complete audit, second one partial audit, third continuous audit, fourth periodical audit, fifth interim audit, sixth efficiency audit, 7 proprietary audit, and 8 performance audit. So let's discuss one by one types of audit part 2 from practical point of view. Number 1, complete audit. Complete audit किसे कहेंगे हम? complete audit when the accounts of business are examined fully, it is called as a complete audit. जब books of accounts completely examine किया जाएगा, that will be called as a complete audit. If the organization prepares final accounts annually, audit is also performed once in a year, and in case of half yearly accounts they are examining accordingly. Okay, so complete audit means यहाँ पर कंपनी जो बिजनेस होता है वो अपना अकाउंट्स होल ईयर पूरा कंप्लीट करता है और तमाम ईच एंड एवरी अकाउंट्स पूरा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो है तो ऑडिट कराया जाता है. दैट एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मीन्स फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च जो फाइनेंशियल जो ईयर एंड होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बिजनेस क्या कराती है, कंपनी अपना अकाउंट ऑडिट कराती है साल के आखिर में, एनुअली या फिर हाफ ईयरली. तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंप्लीट ऑडिट. तमाम का तमाम अकाउंट जब बिजनेस का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और जब उसे ऑडिट कराया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंप्लीट ऑडिट. ओके, नेक्स्ट पार्शियल ऑडिट, टू विच वी विल कॉल पार्शियल ऑडिट. पार्शियल ऑडिट किसे कहेंगे हम? इफ ओनली ए पार्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ बिजनेस आर एग्जामिन, इट इज टर्म्ड एज ए पार्शियल ऑडिट. ठीक है, सो ओनली पार्ट ऑफ द बिजनेस आर एग्जामिन, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ए पार्शियल ऑडिट. अगर किसी एक पार्ट ऑफ द अकाउंट्स, बिजनेस का किसी पार्ट अकाउंट्स का कोई एक पार्ट हम एग्जामिन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए पार्शियल ऑडिट. इट मे बी पार्शियल number 1 periodic wise and number 2 work wise. तो partial periodic wise and second work wise. We will see. Periodic wise implies of a particular period, say a month, 2 months or more. So periodic wise means 2 months, after the interval of 2 months, 3 months, 6 months, इसके इंटरवल पे जो पार्शियल ऑडिट कराया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए पीरियोडिक वाइज ऑडिट, पार्शियल ऑडिट. एंड सेकंड वर्क वाइज ऑडिट. वर्क वाइज implies examination of one portion of accounts. एग्जाम्पल ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स में भी एग्जामिन, यानी कि वर्क वाइज अगर हम एग्जामिनेशन एक पोर्शन अकाउंट का एक पोर्शन एग्जामिन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए वर्क वाइज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एग्जाम्पल यानी कि सिर्फ अगर कैशबुक की ट्रांजेक्शन्स अगर हम ऑडिट कराते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए पार्शियल ऑडिट वर्क वाइज. तो पार्शियल ऑडिट पीरियड वाइज यानी कि हाफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स पर जो कराया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए पीरियोडिक वाइज. और वर्क वाइज यानी वन पोर्शन ऑफ द अकाउंट का किसी पोर्शन का अगर हम एग्जामिन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए वर्क वाइज. एग्जाम्पल सिर्फ कैशबुक की ट्रांजेक्शन्स अगर हम एग्जामिन करते हैं, ऑडिटर एग्जामिन करता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए पार्शियल ऑडिट वर्क वाइज. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव कंटिन्यूअस ऑडिट, टू विच वी विल कॉल कंटिन्यूअस ऑडिट. कंटिन्यूअस ऑडिट हम किसे कहेंगे? व्हेन द ऑडिटर विजिट्स क्लाइंट at a certain or uncertain intervals and examine the accounts up to the date of visit,
during the financial period, it is called as a continuous audit. ठीक है. In this system, audit continuous to follow accounts without any long gap. In case of heavy work, the auditor deploys some of staff on permanent basis, but it is unusual. The usual practice is frequent visit of auditor and his team from time to time to examine the accounts of particular period, also known as running audit. तो continuous audit यानी कि क्या? When the auditor visit clients at a certain or certain intervals and examine the accounts up to the date of visit during the financial period, it is called as a continuous audit. Continuously साल भर जो है तो ऑडिटर अपनी टीम के साथ बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है तो सर्टनली और अनसर्टनली आकर के कंपनी में चेक करता है. बिजनेस अगर चेक करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस ऑडिट. ठीक है, ये साल भर चलता रहेगा. इन दिस सिस्टम ऑडिट विल बी कंटिन्यूअस टू फॉलो द अकाउंटिंग विदाउट एनी लॉन्ग गैप, यानी कि दो महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 9 महीने में जो है तो वो विजिट करता रहेगा और कंटिन्यूअसली साल भर विजिट करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता रहेगा. इन केस ऑफ हेवी वर्क, द ऑडिटर डिप्लॉयज सम ऑफ स्टाफ परमानेंटली ऑन परमानेंट बेसिस. ऑडिटर क्या करता है, अगर हेवी वर्क रहेगा तो कुछ एम्प्लॉयज़ को परमानेंटली, स्टाफ को परमानेंटली वहाँ पर रख देगा, कंपनी में अपॉइंट करवा देगा. बट इट इज़ अनयूजुअल, ये अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है. अभी कोई भी ऐसा के एग्जाम्पल हमें नहीं मिलेगा. द यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ ऑडिटर. एक्चुअल में यूजुअली क्या होता है कि ऑडिटर फ्रीक्वेंटली विजिट करता है. ऑडिटर जो है तो फ्रीक्वेंटली कंपनी में, बिजनेस में जो है तो विजिट करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है अपनी टीम के साथ. टाइम टू टाइम साल भर आकर के वो चेक करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए रनिंग ऑडिट. तो साल भर कंटिन्यूअसली जो ऑडिट चलता है, ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आकर के चेक करता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस ऑडिट. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट. अगर कंपनी अपना ऑडिट कंटिन्यूअसली कराती रहेगी तो उसके कुछ एडवांटेजेस है. क्या एडवांटेजेस है हम देख लेते हैं. नंबर 1, ग्रेटर डिटेक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. एरर्स एंड फ्रॉड जो है तो ईजिली डिटेक्ट हो जाएगा. 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में अगर ऑडिटर आकर के कंटिन्यू चेक करेगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड जो है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड जो रहेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसका वॉच अकाउंट्स के ऊपर रहेगा. ऑडिटर जो है तो कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा आकर के साल भर, इसलिए जो है तो फ्रॉड और एरर जो है तो वो बहुत कम हो जाएगा. पॉसिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नेक्स्ट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. बहुत जल्द जो है तो क्या हो जाएगा, एरर्स एंड फ्रॉड कंटिन्यूअस ऑडिट में डिटेक्ट होता रहेगा. मॉरल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़. अगर एरर्स एंड फ्रॉड कंटिन्यूअसली डिटेक्ट हो जाता है, कंटिन्यूअस जो है तो ऑडिटर विजिट करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, तो मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ इट विल इम्पैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. इजीली जो है तो हम क्या, अगर कंटिन्यूअस ऑडिट होता रहेगा तो अकाउंट्स क्लियर रहेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन करने में जो है तो आसानी रहेगी और इजीली हम बहुत ही क्विकली फाइनल अकाउंट क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे. 5th एडवांटेज है अर्ली प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर प्लानिंग जो है तो वो बहुत आसान हो जाएगी और जल्द ही जो है तो अगर अकाउंट्स क्लियर रहेंगे तो कंपनी जो रहे, बिजनेस क्या है, इजीली अपना फ्यूचर प्लान कर लेगी. नेक्स्ट एडवांटेज है अर्ली रिफ्लेक्शन ऑफ एरर्स. वही बात है, एरर जो है तो फ़ौरन समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा. 7th एडवांटेज, फैसिलिटी फॉर इंटरिम अकाउंट्स. ओके, these were the advantages of continuous audit. Now what are the disadvantages of continuous audit. जैसा कि एडवांटेज है कंटिन्यूअस ऑडिट का, उसी तरीके से डिसएडवांटेज भी है, देख लेते हैं हम. नंबर 1, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ऑडिटेड अकाउंट्स. जो अकाउंट्स पिछला ऑडिटर आकर के चेक करके गया हुआ है तो आगे का आने के बाद आगे जो अकाउंट्स है वो चेक करेगा और पीछे के अकाउंट्स को वो
जो चेक कर चुका है पिछले लास्ट मंथ के, वो चेक नहीं करेगा, जिसमें मैनिपुलेशन करना कंपनी के लिए आसान हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस, उसमें चेंजेस करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्डल्स इन रूटीन वर्क। जो रूटीन वर्क चलता रहता है कंपनी में, बिजनेस में जो काम है वो रूटीन के मुताबिक चलता रहता है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। रूटीन वर्क में जो है तो वर्क को रोक करके ऑडिटर को उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को देना पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हर्डल्स पैदा होंगे, कंपनी के कामकाज में रुकावट पैदा होगी। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है कंटिन्यूस ऑडिट का। एडवर्स मॉरल इफेक्ट, बार बार आने की वजह से, बार बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने की वजह से जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, एम्प्लॉय है कंपनी के, उन पर जो है तो बैड इफेक्ट पड़ेगा। ये अगला डिसएडवांटेज है। मोर एक्सपेंसिव, बार बार अगर ऑडिटर का आ करके विजिट करेगा, अकाउंट्स जो है तो कंपनी का वो चेक करेगा ईच एंड एवरी अकाउंट से, इफ़ इट इज़ चेक बाय द ऑडिटर, देन ही विल company will have to pay heavy fees for their visit, for his visit। ठीक है, उसकी विजिट के लिए जो है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे करना पड़ेगा, उसकी फीस ज़्यादा पे करना पड़ेगी। एंड डिसलोकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्क, यानी कि वर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लॉथ इन द वर्क। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। नेक्स्ट, पीरियोडिक ऑडिट। किसे कहेंगे हम पीरियोडिक ऑडिट? When auditing is performed at the end of the financial period after the final accounts are ready and the process of auditing continues without stop, still it is called periodic audit। क्या बोला ये? When auditing is performed at the end of the financial period after the financial accounts are ready, यानी कि कंपनी साल के आखिर में अपना जो पूरा तमाम अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद, तैयार करने के बाद, साल के आखिर में जब अपना अकाउंट्स ऑडिट कराती है तो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक ऑडिट। ईयरली जो है तो ईयर एंड पर जो ऑडिट कराया जाएगा वो पीरियोडिक ऑडिट कहलाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग कंटिन्यूअस विदाउट स्टॉप टिल इट इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक ऑडिट। वो रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाता है? पीरियोडिक ऑडिट। यानी सिंपल हम समझने के लिए ये आप लोग ध्यान में रखिए कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी जो है तो अपना बिजनेस का जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब तैयार करेगी और उसे क्या कराएगी? ऑडिट कराएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट विल बी कॉल्ड एज ए पीरियोडिक ऑडिट। एग्जाम्पल डेफिनेशन है उसकी, द पीरियोडिकल और कंप्लीटेड ऑडिट इज वन विच इज बिगन ओनली आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड टू विच इट रिलेट्स। यानी कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पीरियड है उसके क्लोज होने के बाद जो है और ऑडिट कराया जाएगा, उसे हम पीरियोडिकल या कंप्लीटेड ऑडिट कहेंगे। यानी कंपनी का साल एंड होता है 31 मार्च को, शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को एंड होगा, तो उस वक्त कंपनी ऑडिट कराएगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट विल बी कॉल्ड एज ए पीरियोडिक ऑडिट। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट? क्या एडवांटेज है पीरियोडिकल ऑडिट के? No scope for change of figures. As we know, periodical audit after being started once continuous till it is completed. Therefore, there is no possibility of change of figures by the employees because all the books are in the possession of the auditor throughout the process ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिटर की निगरानी में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या रहेगा? उसके निगरानी में रहेगा। तो साल के आखिर में तमाम अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद जब हम ऑडिटर को पूरा साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे देते हैं तो वो अपने पास उसके पोजीशन में ले लेता है तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसको ऑडिट करता है। तो देयर विल बी नो एनी स्कोप फॉर द चेंज ऑफ फिगर्स। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज, नो हर्डल्स इन द रूटीन वर्क। रूटीन वर्क में कोई रुकावट नहीं होगी क्योंकि कंटिन्यूअस विजिट नहीं रहेगा ऑडिटर का। नो एनी विजिट ऑफ ऑडिटर कंटिन्यूअसली इन बिटवीन द वर्क ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल क्योंकि साल के आखिर में होगा, जिसकी वजह से जो है तो उसे जो उसकी फीस रहेगी ओनली दैट फीस विल बी पेड। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड ऑल्सो इट इज़ कन्वीनियंट। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, इजीली साल के आखिर में कंपनी को सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करना है और ऑडिटर को दे देना है ऑडिट के लिए।
टाइम सेवर भी रहेगा, कंपनी को सिर्फ लास्ट में देना रहेगा और तमाम का तमाम अकाउंट साल के आखिर में दे करके उसको ऑडिट कराना रहेगा। साल भर उस वो कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड करती रहेगी। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ऑफ पीरियडिकल ऑडिट, लैक ऑफ एग्जॉस्टिव ऑडिट एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन, यानी कि इन डेप्थ एग्जामिनेशन डीपली जो है तो ऑडिटर उस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर पाता। ओनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लास्ट में सारा अकाउंट्स जो है तो उसे दे दिया जाता है लिख करके, और वो एक साथ बैठ करके फिर क्या करता है वो और उसके जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं तमाम उस कंपनी का बिजनेस का जो है तो बुक अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, जिसकी वजह से जो है तो डीप एग्जामिनेशन नहीं हो पाता। दैट इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज। एरर्स आर डिस्कवर्ड वेरी लेट, अगर ऑडिटर इन कंपनी के 3 मंथ्स इंटरवल 6 मंथ इंटरवल पर अगर विजिट करके चेक करेगा, उसी वक्त अगर एरर्स लोकेट हो जाता है तो कंपनी वहाँ पर रेक्टिफाई एरर्स को कर सकती है, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर साल के आखिर में उसे पता चलेगा तो द कंपनी विल बी हेल्पलेस टू रेक्टिफाई द एरर्स विच आर डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ पीरियडिकल ऑडिट। नेक्स्ट, एक्सपोजर ऑफ फ्रॉड वेरी लेट, जैसा कि एरर्स लेट डिस्कवर हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी को, इसी तरीके से फ्रॉड भी आखिर में साल के आखिर में कंपनी को पता चलेगा, जिसकी वजह से फ्रॉड करने वाले पर कंपनी एक्शन नहीं ले सकती। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, लैक ऑफ मॉरल इम्पैक्ट। ओके, डिले इन फाइनल अकाउंट्स, सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ पीरियडिकल ऑडिट। डिलेड एडवाइस, और एडवाइस भी जो है तो कंपनी को ऑडिटर लास्ट में कंपनी का अकाउंट्स पूरा चेक करने के बाद फिर वो कंपनी को लास्ट में एडवाइस देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ज़रिए, जो कि कंपनी उसके आखिर में उसको एडवाइस को इस्तेमाल करके फिर नेक्स्ट ईयर उसको अप्लाई करेगी। ठीक है, दीज वेर द डिसएडवांटेजेस। नाउ इंटरिम ऑडिट और टेम्पररी ऑडिट। टेम्पररी ऑडिट या इंटरिम ऑडिट किसे कहेंगे हम? द enterprise which do not have continuous audit but have the periodical audit sometimes feel the necessity of preparing balance sheet and profit and loss account in between the year and getting them audited accordingly, say 6 months or quarterly due to certain reasons। कंपनी को जो है तो से फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनी है, बिजनेस बड़ा है, तो उनको कंटिन्यूसली लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिट कराना फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बिजनेस होने की वजह से उनको वर्क भी जो ज़्यादा रहेगा, अकाउंट्स भी ज़्यादा रहेंगे, और उन्हें इन बिटवीन उनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है तो क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स और क्वार्टरली जो है तो उन्हें अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज ए इंटरिम ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट। The modern age is characterized by tough competition, and therefore every business wants to increase efficiency by way of reduction in cost and enhancement of profit. It includes have technical estimates and detailed programs being made regarding the project and have cost schedules been prepared। यानी कि मॉडर्न एज जो इस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है कि टफ कंपटीशन की वजह से बहुत से बिजनेस क्या चाहती है, उनका एफिशिएंसी बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट को कम करना चाहती है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, जिसकी वजह से वो एफिशिएंसी ऑडिट कराती है। तो अगर ऑडिट एफिशिएंसी ऑडिट कराती है तो उनका कॉस्ट कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है उसको कंपनी कम कर सकती है, और कहाँ से कंपनी अपना प्रॉफिट एनहांस कर सकती है उसको जो है तो टारगेट करेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का। दैट इज कॉल्ड एज ए एफिशिएंसी ऑडिट। इट इंक्लूड्स हैव टेक्निकल एस्टिमेट्स and detailed program being made regarding the project and have cost schedule been prepared। जो है तो डिटेल टेक्निकल एस्टिमेट्स लगते हैं, डिटेल प्रोग्राम्स उसको बनाना पड़ता है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एफिशिएंसी ऑडिट के लिए। एंड हैज़ देयर बीन
inordinate delay in the program of the project due to which cost overrun has occurred. So efficiency, this is called as a efficiency audit. Next, what is internal audit? Internal audit किसे कहेंगे हम? Internal audit comprises all the measures whereby every aspects of business is controlled. A businessman wants to control the internal function of the business in such a way as to maximize the profit and reduce the minimal level of possibility of errors and fraud. तो इंटरनल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझ लीजिए क्यों कराया जाता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड टू रिड्यूस द possibility of errors and frauds. That's why the company or the businessman wants, and also the company and businessman wants to control the internal function of the business. ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है तो इंटरनल ऑडिट कराया जाता है. Internal auditing is best regarded as indicating the whole system of the controls, financial or otherwise, established for the conduct of business, including internal audit and other forms of controls. For controlling all these things, internal audit is done by the company. Okay, thank you for watching my video. So like this we have completed both the part. Thank you very much.